You have perhaps seen amber and know its rich, sunshiny color and its fragrance when rubbed. And do you also know that rubbing will make amber attract things somewhat as a magnet does? Genie's beads had all these properties, but some other besides, wonderful and lovely. And it is of those particularly that I wish to tell you. Each bead has inside of it some tiny thing, encased as if it had grown in the amber. And Genie is never tired of looking at it and wondering about them. There is one with a delicate bit of ferny moss shut up, as it were, in a globe of yellow light. In another is the tiniest fly, his little wings outspread and raised for flight. Again, she can show us a bee lodged in one bead that looks like solid honey, and a little bright-winged beetle in another. This one holds 2 slender pine needles lying across each other, and here we see a single scale of a pine cone, while yet another shows an atom of an acorn cup, fit for a fairy's use. I wish you could see the beads, for I cannot tell you the half of their beauty. Now, where do you suppose they came from? And how did little Scotch Genie come into possession of such a treasure? All she knows about it is that her grandfather, old Kenneth, who cowers now all day in the chimney corner, once, years ago when he was a young lad, went down upon the seashore after a great storm, hoping to help save something from the wreck of the Goshak that had gone ashore during the night, and there among the slippery seaweeds his foot had accidentally uncovered a clear, shining lump of amber, in which all these little creatures were embedded. Now, Kenneth loved a pretty Highland lass, and when she promised to be his bride, he brought her a necklace of amber beads. He had carved them himself out of his lump of amber, working carefully to save in each bead the prettiest insect or moss, and thinking, while he toiled hour after hour, of the delight with which he should see his bride wear them. That bride was Genie's grandmother, and when she died last year, she said, "Let little Genie have my l'amour beads, and keep them as long as she lives." But what puzzled Genie was how the amber came to be on the seashore, and most of all, how the bees and mosses came to be inside of it. Should you like to know? If you would, that is one of Mother Nature's stories, and she will gladly tell it. Hear what she answers to our questions. I remember a time, long, long before you were born, long even before any men were living upon the earth. Then these Scotch Highlands, as you call them, where little Genie lives, were covered with forests. There were oaks, poplars, beeches, and pines, and among them one kind of pine, tall and stately, from which a shining yellow gum flowed, just as you have seen little drops of sticky gum exude from our own pine trees. This beautiful yellow gum was fragrant, and as the thousands of little insects fluttered about in the warm sunshine, they were attracted by its pleasant odor, perhaps too by its taste, and once alighted upon it, they stuck fast and could not get away, while the great yellow drops oozing out surrounded and at last covered them entirely. So too, wind-blown bits of moss, leaves, acorns, cones, and little sticks were soon securely embedded in the fast-flowing gum, and as time went by, it hardened and hardened more and more,
And this is amber. That is well told, Mother Nature. But it does not explain how Kenneth's lump of amber came to be on the seashore. Wait, then, for the second part of the story. Did you ever hear that, in those very old times, the land sometimes sank down into the sea? Even so deep that the water covered the very mountain tops. And then, after ages, it was slowly lifted up again. To sink, indeed, perhaps yet again and again. You can hardly believe it, yet I myself was there to see. And I remember well when the great forests of the north of Scotland, the oaks, the poplars, and the amber pines, were lowered into the deep sea. There, lying at the bottom of the ocean, the wood and the gum hardened like stone, and only the great storms can disturb them, as they lie half buried in the sand. It was one of those great storms that brought Kenneth's lump of amber to land. If we could only walk on the bottom of the sea, what treasures we might find! रे रुको, हिंदी में नई स्टोरी को कहाँ भागते हो? सब्सक्राइब तो कर लो पहले। चलो आप देखते हैं प्यारी सी स्टोरी। ये है द स्टोरी ऑफ अम्बर बीड्स, जैन एंड्रू ने लिखी हुई ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो हम देखते हैं इसे। ये एम्बर क्या होता है पता है? ये एम्बर होता है जो एक पीले कलर का टनक पदार्थ होता है जिससे हम आजकल गर्ल्स के लिए नेकलेस वगैरह बनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक लड़की, ब्यूटीफुल सी लड़की है, उसके हाथ में ब्यूटीफुल सा नेकलेस है और जिसके ऊपर आप देख सकते हैं मक्खी भी है। और आपको पता है जितना भी आप इस एम्बर को रगड़ो उतना ही ये अट्रैक्ट करता है, उतना ही ये चमकीला बन जाता है और दिन ब दिन आप उसको टच करना चाहते हो। ऐसे ही एक मैग्नेट के जैसे ये एक धातु है। ये कैसे बनता है? ये रबर के जैसे है। आप जितना भी इसे टच करना चाहते हो, जितना भी कुछ करोगे, यूज़ करोगे, ये पतला नहीं होता है और ये घटता भी नहीं है। ऐसे कैसे एक प्रॉपर्टी की तरह है। यहाँ पे ये जो लड़की है ये जेनी है। तो जेनी के पास जो ये बीड्स है, ये माला है, ये कहाँ से मिली है? ये बहुत वंडरफुल है, ये बहुत लवली है, जो उसके दादी माँ ने उसे दी थी। तो ये कहाँ से उसके पास आई इतनी? ये तो रिच नहीं लगती है। ऐसे वाली मोतियों की माला जनरली आप लोगों को कोई बड़ी करोड़पति औरत के पास ही मिलेगी और ये इस ब्यूटीफुल गर्ल के हाथ में है। इसका मतलब ये लाखों करोड़ों में कमाती नहीं है, पर इसके हाथ में क्यों है ये मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। और ये इसने लाया कहाँ से होगा? इसके ऊपर जो ब्यूटीफुल जो बीज बने हैं, जो उड़ने के लिए बेकरार है, ये कहाँ से कैसे लॉक हो गई? इसके हर एक मोती में एक सीक्रेट सा दड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मोती है, मतलब इस माला का जो एक आप इसे बोल सकते हैं, मोती बोल सकते हैं। तो ये कैसे येलो कलर का जो लाइट पदार्थ है, ये कहाँ क्या होगा? इसके अंदर जो फ्लाई है, इसके अंदर जिसके उड़ने के लिए जो बेकरार है, ये कैसे अटक गई होगी और ये अंदर कैसे गई? हर एक मोती में हर एक चीज़ जड़ी हुई है। कोई लीव्स है तो कोई दो निडल के जैसे, सुई के जैसे दिख रहे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये जो बीज है, हनी बीज है, ये अटक गई है और इसके ऊपर ये ब्यूटीफुल बनाया है कि ये नेचर ने ऑटोमेटिकली दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये रात के टाइम में निकलने वाला जो कीड़ा होता है वो अटक गया है। यहाँ पे दो सुई अटक गई है। ये कैसी भाई, ये जादूगरी कैसी है, हमें भी बताओ ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़े से लीव्स अटक गए हैं, जो पूरी पत्ते के पत्ते सूख गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते। अरे यहाँ पे तो सीड है, यहाँ पे दो जो पाइन पेड़ है उसका सीड यहाँ पे अटक गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये कहाँ से आया होगा? अरे बाप रे, यहाँ पे तो कब है, एक ग्रॉन कब जो है, ये बाप रे बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो ये एम्बर के
बेड्स है और ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे ब्यूटीफुल इतना नेकलेस किसने बनाया होगा, ये सारी की सारी स्टोरी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जेनी अचानक से रिच अपने आप को महसूस क्यों कर रही है, उसके पास ऐसी ये ब्यूटीफुल जो माला उसके हाथ में है ये कहाँ से आई। तो ये स्कॉटिश जीनी जो है इसके पास ये इतना अद्भुत इसकी ट्रेजर जो बोल सकते हैं आप, ये कहाँ से आई। उसके जो ग्रैंडफादर केनिथ है ये जो है ये चिमनी के कॉर्नर में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, और ये लड़की उनसे पूछती है और उन्होंने ही ये सब कुछ अपने बिलवेड मतलब उसकी जो दादी है उनके लिए बनाया था। ये जब यंग हुआ करते थे तो वो बोलते हैं कि एक दिन मैं समंदर के किनारे जाके बैठ गया और जब समंदर के किनारे मैं बैठा था तब मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो शिप जो है ये शिप टूटी हुई सी वहाँ पे है, किसी को हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मैं उस टूटी हुई शिप की तरफ जैसे ही जाने लगा तब मेरे पैरों के नीचे अचानक से कुछ तो ऐसे लगा, मेरा पैर उसके ऊपर से स्लिप हो गया। तो जैसे ही वो स्लिप हो गया वहाँ पे ना चमक रहा था, इतना शाइनिंग हो रहा था और उसको पैर लगते ही मेरा पैर को अजीब सा ही महसूस हुआ, जैसे कि कुछ तो चीज़ मेरे लिए ही दुनिया में बनी है और वो मुझे बोल रही कि मुझे यहाँ से निकालो करके। तो मैंने नीचे हाथ डाला तो येलो कलर का जो पीले रंग का जो येलो मतलब पीला ही होता है, सॉरी, एक टनक पदार्थ मुझे दिखाई दिया, बड़ा सा स्टोन दिखाई दिया और वो मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा कि मैं उसे घर लेके जाने के लिए बेकरार हो गया। और मैंने सोच लिया था मैं जो मेरी प्रिंसेस, मेरी जो डार्लिंग है, मेरी जो वाइफ बनेगी, उसके गले में इसी का नेकलेस मैं बना के डालूँगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा उसके गले में। ऐसे सोच के फिर मैंने इस बड़े से धातु को घर में लाया और फिर इसे देख देख के उसको मैं उसकी छोटे छोटे मोतियों को काटने लगा। जब मैं मोतियों को काट रहा था तो सबको सेम कलर में, सबको सेम डिज़ाइन में, सबको सेम ही वेट में काटना शुरू कर दिया। और तब मैंने देखा कि हर इस एक इसमें कुछ अलग अलग, जैसे कि किसी में हनी बीज था तो किसी में ये था, तो मैंने एक माला बना दी और माला बनाने के बाद मैंने मेरी स्वीट डार्लिंग जो बिलवेड है, जो मेरी वाइफ बनेगी, जो मेरी दुल्हन बनेगी, उसके गले में मैंने डाल दिया। ये है वो प्यारी सी दुल्हन, मतलब अभी तो बुढ़ी है लेकिन कभी जवान हुआ करती थी, तब उन्होंने उनके गले में डाल के ये अपनी दौलत उनके गले में डाल के अपने आप को भी सौंप दिया था। तो ये जो दादी है अब ये बूढ़ी हो गई है, ये मरने का टाइम आ गया और मरने के टाइम में उन्होंने जिनी को बुला के बोला कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं हूँ, अब बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन ये जो तुम्हारे दादाजी ने ये मुझे दिया था, ये नेकलेस मुझे जान से भी प्यारा है और ये बहुत कीमती है, ऐसे बोल के उसे हाथ में उसे सौंप दिया। तो जिनी तब से इसी को लेके अपने पास ही रखी है और वो भी समंदर के किनारे आके देखती है कि ऐसे दादाजी ने यहाँ पे क्या मिला होगा उनको और ये इतना ब्यूटीफुल, ये कैसे क्या। तो चलिए वो भी कहानी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये तो कहाँ से लाया इसके दादाजी ने, वो बताती है, लेकिन ये वहाँ पर पानी में कैसे आया ये अब आप लोगों को मैं बताती हूँ, तो गौर से सुनिएगा। आप लोगों को पता होगा कि बहुत 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 पुराने ज़माने में यहाँ पे जो सी है, मतलब समंदर दिखाई दे रहा था, यहाँ पे पहले घना जंगल था, बहुत घना जंगल था और इस जंगल में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। ये पूरी हरी हरी धरती थी। पहले के ज़माने की बात कर रही हूँ, जब इंसान इतना, जैसे आजकल गाड़ियाँ है, ये पोल्यूशन है, इनके कारण आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, ये जो बड़े बड़े वन है, ये ख़त्म होने को आए, लगभग आधे भी नहीं रहे हैं। और तब क्या हो गया कि ये समंदर जो है, यहाँ पे पानी जब आ जाता था तो इतना आ जाता था कि वो जो फॉरेस्ट है स्कॉच का, वहाँ पे भी अंदर भी घुस जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी हरियाली, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, तो हर एक पेड़ का अलग अलग चीज़ें पास में, बिल्कुल पास में, कभी भी ओक दिखेगा आपको, पोलर दिखेगा आपको, बीचेस दिखेगी आपको, पाइन्स दिखेगा आपको, ये अलग अलग
अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग टेस्ट के ये जो बड़े बड़े ये रहते हैं ट्रीज रहते हैं वो थे। तो एक ऐसा पेड़ था कि जिस पेड़ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर का उस पेड़ के अंदर से ही कुछ तो लिक्विड बाहर आना शुरू हो गया। तो वो जब लिक्विड बाहर आ रहा था तो वो चमक भी रहा था। तो क्या होता था, ये गम के जैसे था, आप इसे गम ही बोल सकते हो। तो ये निकल रहा था पूरा पेड़ के आजू बाजू से, साइड से, इधर उधर से निकल रहा था। और इसकी चपेट में जो भी चीज़ आ जाती थी, जैसे कि बहुत बार ये इतना स्वीट लगता था कि ये हनी बीज जो है ये गलती से इसके ऊपर आ जाते थे। जब आ जाते थे तो उनको वहाँ से चिपक, ये गम है, ये चिपकालू पदार्थ है, आप फेविस्टिक के जैसे यूज़ करते हैं वैसे है। इसके ऊपर एक बार अगर कोई चीज़ बैठ जाए तो वो उठती नहीं थी। फिर क्या होता था, वो उधर ही चिपक के रह जाती थी। जैसे जिस टाइप में वो वहाँ पे बैठी है उसी टाइप में वो वहाँ पे रह जाती थी, मर जाती थी, निकलती ही नहीं थी, वो फंस जाती थी। उसके बाद में ये जो येलो कलर का जो गम है ये उसके ऊपर आता था और आता था। और ये जो है ना, ये फिर क्या हो गया, जब ये ड्रॉप बड़ा हो गया तो ये नीचे 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 उतरते हुए ये पेड़ की जो नीचे वाले डाल है उसके ऊपर आ जाता था। फिर नीचे वाले डाल से ये ज़मीन के ऊपर आ जाता था और वहाँ पे ये बड़ा से पत्थर के जैसे ये क्या हो जाता था, जमा हो जाता था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड्स है, 2 निडल्स है, 2 लीव्स है, कुछ छोटे छोटे जो डंडियाँ रहती है वो है। ये सब उसके वो जो गम जैसे पीला कलर पदार्थ है जो ऑटोमेटिकली पेड़ से निकल रहा था, उस ड्रॉप के ऊपर जैसे ही गिर गया तो वहाँ पे ही बैठ गया और ये ड्रॉप नीचे नीचे आना शुरू हो गए थे। अब ये नीचे नीचे आके मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पेड़ के नीचे ये गिर जाते थे। पेड़ के नीचे ये गिरने के बाद उसके ऊपर और गिरता था लिक्विड, और गिरता था, और ये बड़ा सा कड़क सा स्टोन आप यहाँ पे देख सकते, येलो कलर का चमकीला सा ये स्टोन यहाँ पे बन गया है। तो ये बनने के बाद क्या हो गया कि एक बार नेचर आप खुद ही बड़ी क्रिएटिव है भाई। ये सब जो डायमंड है, ये है, वो है, ये हमें किसने दिया? ये धरती माँ ने ही दिया, उसके अंदर ही था। तो केनिथ को ये जो मिला है ये ज़मीन में, सॉरी, ये एक्चुअली वो जो फॉरेस्ट था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि पानी घुस गया और फिर धीरे धीरे जैसे ही वन ख़त्म होने को आए तो वो पूरी की पूरी प्लेस पानी के नीचे चली गई। और इसीलिए वो जो स्टोन है ये क्या हो गया, ये स्टोन पूरा का पूरा वहाँ समंदर में शीशोर के बीच में आप लोगों को मिल गया। अब ये आप बोलोगे कि कैसे घुस गया था? हाँ भाई, बहुत बार ऐसे होता था कि फ्लड आ जाता था, बारिश बहुत होती थी और फिर पूरे के पूरे समंदर जो है वो इस वन में घुस जाता था और पूरे के पूरे जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे पेड़ जो है ये पानी के नीचे आ जाते थे, सड़ जाते थे। सड़ने के बाद इनका पूरा का पूरा ये सब खराब हो जाता था। खराब होने के बाद जो आधा से ज़्यादा एरिया है वो पानी के नीचे ही रह जाता था और बाकी का जब बचे हुए जो पेड़ पौधे हैं वो भी सड़ जाने के कारण वो पूरा का पूरा उसके अंदर मेल्ट हो जाता था। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया होगा। और ये जो यहाँ पे एम्बर बीड्स है ये इसको कैसे मिला होगा, ये पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई है। ये समुद्र के अंदर बहुत सारी ट्रेजर आप लोगों को मिलेगी जो पानी के अंदर समा गई है। उसके बाद में आप लोग जब भी ढूंढने को निकलेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समंदर के नीचे बहुत सारी ट्रेजर जो छुपी हुई है वो सारी की सारी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ये जो है ये येलो कलर का जो माला लड़की ने पहनी हुई है ये उसको कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस स्टोरी में यहाँ पे बता दी है। ये जो कड़क पदार्थ है ये रियली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चमकीला है, एक मैग्नेट की जैसे है। जैसे भी आप इसको टच करने की कोशिश करोगे, जितना भी आप टच करोगे उतना ही आपका और टच करने का जी होगा। और केनिथ को ये कहाँ से कैसे मिला ये भी मैंने स्टोरी आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। जो वन थे, वन में से उस पेड़ से निकला था, पेड़ में से फिर पेड़ के नीचे आ गया, पेड़ के नीचे आने के बाद वो वहाँ पे रह गया। फिर वहाँ पे सीसोर के टाइम में जब केनिथ वहाँ पे गया तो उसको मिला, उसने अपने बिलवेड के गले में ये माला बना के डाल दिया और बिलवेड ने ये जो है ये जेनी को दे दिया। और जेनी इसको सोच के परेशान हो रही थी कि ये समंदर के किनारे
कैसे आ गया, जो अब मैंने आपको स्टोरी के बताते हुए सब चीज़ बता दी है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको भी आपका एक बटन जो है ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस मेहनत को फल दे दीजिए। तो ऐसे ही देखते रहिए प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। धन्यवाद।